خبر یہ ہے کہ بجلی کے بھاری بلز عوام کے ساتھ صوبائی سرکاری ادارے کے لیے بھی چیلنج ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے سرکاری اداروں سے اوور چارجنگ کا انکشاف ہوا۔ انرجی ڈپارٹمنٹ نے بھاری بلوں کو خزانے پر بوجھ قرار دے دیا۔ محکمہ انرجی کا کہنا ہے کہ لیسکو سمیت دیگر کمپنیاں سرکاری محکموں سے اوور چارجنگ کر رہی ہیں۔ معاملہ کیا ہے جانیں گے فہد امین سے۔ فہد بتائیے۔ جی بالکل، بجلی کے بھاری بلوں سے جہاں عوام پریشان ہے وہیں سرکاری ادارے بھی جو ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے سرکاری اداروں سے اوور چارجنگ کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے اور اس حوالے سے انرجی ڈپارٹمنٹ نے بھاری بلز کو خزانے پر جو ہے وہ بوجھ قرار دیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جن میں لیسکو، پیسکو، میپکو، گیپکو اور آئسکو شامل ہیں وہ سرکاری محکموں سے اوور چارجنگ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ انرجی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 1,02,237 بجلی کے سرکاری کنیکشن ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں 1,91,58,00,000 سے زائد جو ہے وہ بلنگ ہوئی ہے۔ سرکاری اداروں نے ڈسکوز کو بجلی کے بل کی مد میں 76 ارب روپے جو ہے وہ ادا کیے ہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے سرکاری اداروں سے جو ہے وہ اوور چارجنگ کا رجحان اب جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے اور محکمہ انرجی نے اوور چارجنگ کے حوالے سے نئی پالیسی جو ہے وہ نافذ کر دی ہے۔ تمام سرکاری ادارے بل کی ادائیگی میٹر ریڈنگ کی تصدیق کے بعد کریں گے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق تمام ادارے اپنی خود سے میٹر جو ہے وہ ریڈنگ کر کے بجلی کے بل کے ساتھ سرٹیفکیٹ AG آفس جو ہے وہ جمع کرائیں گے۔ اگر اداروں کو یونٹ چارج کرنے کا معلوم ہو تو متعلقہ تقسیم کار کمپنی سے رجوع کیا جائے گا۔ ڈسپوز سے اوور ریڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو تو محکمہ انرجی سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا۔ انرجی ڈپارٹمنٹ نے پنجاب اسمبلی، سول سیکریٹریٹ، تمام ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریٹس کو جو ہے وہ اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا ہے۔ IG پولیس پنجاب، محکمہ زیر خانہ جات، جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ مراسلے بھجوا دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے فہد، تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ DG LDA طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ MD واسا کی جاری اور آئندہ کے منصوبوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ DG LDA کا کہنا تھا کہ واسا ماسٹر پلان کے مطابق مرحلہ وار بوسیدہ سیوریج سسٹم بہتر کرے۔ بڑھتی آبادی کے پیش نظر سیوریج انفراسٹرکچر کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ احوال جانیں گے، زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں۔ زین، اجلاس کا احوال بتائیے۔ فاروق نے واسا امور بارے اہم اجلاس کیا اور بعد ازاں مختلف جو منصوبہ جات ہیں ان کا دورہ بھی کیا۔ MD واسا غفران احمد کی طرف سے جاری اور آئندہ کے منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں واسا کے جو انفراسٹرکچر جو ہے اس سے سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ DG LDA نے فیروزپور روڈ پر نیشنل کالونی واسا ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ بھی کیا اور واسا کے انفراسٹرکچر اور عملے کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں DG LDA نے ہڈیارہ ٹینک اور خیرا ڈسٹریبیوٹری کا بھی دورہ کیا۔ MD واسا کو کام ہوئی مجدہ منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ موقع پر DG LDA کا کہنا تھا کہ واسا ماسٹر پلان کے مطابق مولانا اور مسودہ سیوریج سسٹم کی بہتری کرے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر شہر میں سیوریج انفراسٹرکچر کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے۔ طاہر فاروق نے کہا کہ موجودہ پنجاب کی ہدایات کے مطابق شہریوں کو سروسز کی فراہمی میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ LDA کی اپنی اسکیموں میں واسا کے سروسز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ عید کی چھٹیوں میں بھی واسا ٹیمیں متحرک رہیں اور فیلڈ پلان مرتب کیا جائے۔ DG LDA نے سمر کی ہدایت کی کہ واسا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ حکام کی کوارڈینیشن رکھے اور شکایات ابھی ضرورت کیا جائے۔ ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے ماڈل بازاروں کے دورے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے ہدایات جاری۔ ایگریکلچر پرائز شاپس اور شکایات کاؤنٹرز کو فرنٹ پر لگانے کی ہدایت کی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا تمام مجسٹریٹ عام تمام مارکیٹوں پر فوکس رکھیں اور معیار و قیمتوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہدایات واضح طور پر جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے یہ ماڈل بازاروں کے دورے ہیں۔ رش کو کنٹرول کرنے کے لیے ہدایات دیں۔ ایگریکلچر پرائز شاپس اور شکایات کاؤنٹرز کو فرنٹ پر لگانے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا تمام مجسٹریٹ عام مارکیٹوں پر فوکس رکھیں، معیار و قیمتوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ واضح طور پر کمشنر کی جانب سے ہدایات سامنے آئی ہیں۔ ایگریکلچر پرائز شاپس اور شکایات کاؤنٹرز کو فرنٹ پر لگانے کی ہدایت کی اور کہا کہ قیمتوں کا تعین کیا جائے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے یہ مختلف ماڈل بازاروں کے دورے ہیں۔
छोटी ईद अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात सभी अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। महंगाई से परेशान वालिदैन भी बच्चों के लिए मुनासिब कीमत पर जूते, ज्वेलरी और चूड़ियाँ ख़रीदने में मगन हैं। अहवाल जानेंगे, सामिया सईद हमारे साथ हैं। सामिया, बताइए क्या तासुरात हैं आवाम का, कैसा जज्बा है ईद के लिए? जी बिल्कुल, ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। इफ्तारी के बाद से ही लाहौर की मार्केटों में जो है वो रश बढ़ जाता है। अभी भी यही देखा जा रहा है, खूब खेमा गहमी है। यहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं है, क्योंकि ख़वातीन, मर्द हज़रात, बच्चे सभी अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये देखा जा रहा है कि रेडीमेड दुकानों की तरफ भी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। ज्वेलरी के जो है वो जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं, खुदसों के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितना एंजॉय कर रही हैं और क्या खरीदा है यहाँ से। हाँ जी, बस हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए ही निकले। कपड़े, शलवार कमीज़ वगैरह, कुर्ते, जो भी चूड़ियाँ, ज्वेलरी, ये मेरी बेटी है साथ, इसका भी शौक़ है। और बाकी आपको पता लिबर्टी की रौनक होती है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं। जी आप बताएं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्या ख़रीदा है अभी तक? मुझे तो लगता है आपको ज्वेलरी ख़रीदने का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ईद के लिए क्या ख़रीदा है अभी? मैं अभी आई हूँ, तो अभी मुझे अपने पेरेंट्स मिले हैं यहाँ पे, तो मैं वही देख रही थी आते हुए अपने दोस्तों के साथ कि हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इन्फ्लेटेड बता रहे हैं, या तो मेरी ज्वेलरी देख के, मेरा शौक देख के बता रहे हैं। बहरहाल अब मैं बड़ी ईगर हूँ ख़रीदने के लिए, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी हूँ क्योंकि कीमतें ज़्यादा, लेकिन निगोशिएट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी बस हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना, मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने देखा जो ख़वातीन है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं, अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रही हैं, कुछ जो है वो ज्वेलरी खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे जो हैं वो भी ईद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। छोटे बच्चियाँ जो हैं वो अपने पर्स देख रही हैं ईद के लिए, ताकि उसमें ईद के दिन ईदी डाल सके। तो ये गहमा गहमी चांद रात तक इसी तरह जारी रहेगी। ठीक है सामिया, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ईद की आमद परदेसियों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। शहर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों का कहना है ईद का मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है। अहवाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद हमारे साथ हैं। शाहजेब बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा में, जहाँ पे काफ़ी रश दिखाई दे रहा है क्योंकि ईद की आमद है और परदेसियों के वापस जाने का सिलसिला जारी है। लोग अपने आबाई इलाकों में वापस जा रहे हैं ताकि अपने प्यारों के साथ ईद मना सकें। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं लाहौर में किस घर से क्या काम करते हैं और वापस कौन सा आपका आबाई इलाका कौन सा है, ईद मनाने के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा लक्की मरवत इलाका है भाई, और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो अब इंशाल्लाह ईद पे जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, तो 8-10 दिन गुजार के फिर इंशाल्लाह आएंगे। लंबी छुट्टी हुई हैं, अमूमन ईद के ऊपर इतनी छुट्टियां नहीं होती, लेकिन लॉन्ग वीकेंड है, तो घर पे कौन कौन आपका इंतज़ार कर रहा है? ज़ाहिर बात है, माँ है, वालिद है, वालदा है, बच्चे हैं, बीवी है, तो सारे इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह सबके साथ ईद की खुशियाँ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपनों के साथ ही मनाने का मज़ा आता है और इस बार जो है वो लंबी छुट्टियाँ हुई हैं ईद पर, और शहरी जो है वो अपने आबाई इलाकों को वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि अपने बीवी, बच्चों, अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ ईद मना। ठीक है, खबर है कि मीठी ईद का लाजमी जुज़ तो सवैयाँ होती हैं, लेकिन चटपटे खानों का अपना ही मज़ा है। गोश्त की डिशेस पकाने के लिए सब्ज़ मसाला जात ज़रूरी है। ईद की आमद है। नमकीन डिशेस की तैयारी के लिए लाजमी सब्ज़ मसाला जात महंगे हो गए। एक हफ्ते में टमाटर 65 रुपए फ़ी किलो महंगा हुआ। टमाटर का सरकारी नर्ख 160 रुपए फ़ी किलो, जबकि मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 200 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम टमाटर भी 180 रुपए फ़ी किलो तक दस्तयाब है। प्याज के नर्ख में एक हफ्ते में 25 रुपए फ़ी किलो इजाफा हुआ। मकामी प्याज दर्जा अव्वल का सरकारी नर्ख 205 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि मार्केट में मकामी प्याज कम अज कम 250 रुपए फ़ी किलो बिक रहा है। दरामदी प्याज भी 200 से 220 रुपए फ़ी किलो तक दस्तयाब है। लहसुन 10 रुपए फ़ी किलो महंगा। लहसुन का सरकारी नर्ख 615 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर हुआ। ताहम मार्केट में लहसुन 800 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि अदरक 700 रुपए फ़ी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह मार्केट में सब्ज मिर्च 200 रुपए फ़ी किलो और सब्ज धनिया की गट्टी 25 से 30 रुपए में दस्तयाब है। अवाम कहते हैं कि मुनाफाखोर कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। सुबह सुबह आए हैं कि शायद सब्ज़ी सस्ती हो, मगर सब्ज़ी महंगी बहुत है। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रहे। लहसुन है वो 200 रुपये पाव कह रहे हैं, किसी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगने दे रहा। ईद के नाम पे जी बस पीछे जी स्टॉक कम है, ये है वो है, प्याज है वो इतना महंगा है। टमाटर 70 रुपये किलो लिए हैं, आज 200 रुपये किलो हो गए हैं।
प्याज भी 200 रुपये किलो हो गया है, बाकी चीज़ें भी सारी महंगी हो गई हैं। बंदा क्या करे, कौन सी सब्ज़ी ले? अब सब्जियाँ भी बारे में नहीं, बंदा क्या पकाए। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ बहुत महंगी हुई है, प्याज टमाटर लहसुन हर चीज़। ईद में अभी 2 रोज़ बाकी हैं और ख़दशा यही है कि महंगाई की लहर में मज़ीद तेज़ी आएगी। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर इतवार को भी अशिया की फ़रोख्त जारी है। रमज़ान के आखिरी अय्याम में भी आवाम की कतारें बदस्तूर लगी हैं। रमज़ान पैकेज पर चांद रात तक अमल दरामद जारी रहेगा। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। गरीब आवाम को रिलीफ फरहमी का मिशन। रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स इतवार को भी खुले रहे और हफ्तावार तातील न की। यूटिलिटी स्टोर्स में रमजान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। सारिफीन का रश भी बरकरार है। गरीब शहरियों को रिलीफ देने के लिए बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के दायरा कार को बढ़ा दिया गया था, जबकि आम सारिफ को रमजान में भी यूटिलिटी स्टोर से कोई रिलीफ न मिला। बेनजीर प्रोग्राम में शामिल न होने वाले आम सारिफ मार्केट रेट पर ही अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ को 10 किलो का आटा 648 रुपए का मिल रहा है। आम सारिफ बदस्तूर 1370 रुपए में 10 किलो का आटा खरीदेगा। बेनजीर प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी 109 जबकि आम सारिफ के लिए 155 रुपए किलो दस्तयाब है। आम सारिफ को घी 435 रुपए फी किलो जबकि बेनजीर प्रोग्राम सारिफ को 335 रुपए फी किलो में मिल रहा है। अवाम कहते हैं रिलीफ पैकेज बेहतर है, लेकिन आम सारिफ यकसर नजरअंदाज हुआ है। परेशानी 3 दिन हो गए, खज्जल खवार हो रहे हैं इतना ज़्यादा। बच्चे छोटे को लेके तो कभी इधर कभी उधर, कभी कहते हैं इधर जाओ कभी उधर जाओ, अंदराज कर नहीं रहे। कहीं पे भी जाओ, बेनज़ीर के दफ्तर जाओ तो वो कहते हैं जी वहाँ पे कुछ लोग खड़े हमें पैसे दें, कोई 2000 मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है। भाईजान यहाँ पर हम आ रहे हैं 3-4 दिनों से, तो कार्ड पे कहते हैं कार्ड नहीं लगता, ना कोई चीनी ना घी ना कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। वफाकी हुकूमत ने 12 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज दिया है, जो शेड्यूल के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं इंसदाद स्मोक के लिए शहरियों को हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। लाहौर में सड़कों के किनारों पर 30 जून तक 20,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। स्मोक के खात्मे बारे इजलास में मजीद क्या क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मोक के खात्मे के हवाले से इजलास हुआ। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट और मिड टर्म बुनियादों पर इंसदाद स्मोक बारे एक्शन प्लान मुरतब। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए मुतल्लिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने पर भी गौर किया गया। इंडस्ट्री की मुकम्मल मैपिंग, सोलर प्रोग्राम के तहत सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाएगा। ट्री प्लांटेशन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। इजलास में कहा गया है कि मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है लाहौर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 6 जून तक मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। 30 सितंबर तक शहर की 50% सड़कों के किनारे पैदल रास्ते बनाने का प्लान मुरतब किया गया। सड़कों के किनारों पर 20,000 दरख्त भी लगाए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर ने सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्रोग्राम पर अमल दरामद का भी हदफ दिया है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम, सालाना मुआयना भी होगा। लाहौर में जदीद तरीन गैस एनालाइजर से धुएं के अखराज को मॉनिटर करेंगे। पंजाब में 31 दिसंबर तक ईंधन की टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बना दी जाएगी। इजलास में किसानों को फसलें और उनकी बाकियात तलफ करने के लिए जदीद मशीनरी देने का फैसला भी किया गया। और ख़बर यह है पंजाब में 5,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। अगले 2 बरस में काश्तकारों को 3,000 लेज़र लैंड लीवर्स के हवाले से फराहम किए जाएंगे और कहा गया है कि सेक्रेटरी ज़राअत की ज़ेर सदारत इजलास में यह अहम फैसले किए गए हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास किसानों को रियायती नर्ख पर आलात और सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए इकदाम पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि फॉरम मैकेनाइजेशन के तहत 1800 ज़रई आलात 710 काश्तकारों को जल्द फराहम कर दिए जाएंगे। इनमें से मरकज़ की सतह पर भी 2 काश्तकारों को शफाफ कुरानदाजी के जरिए जदीद ज़रई आलात दिए जाएंगे।
कुरानंदाजी में कामयाब खुशनसीब काश्तकारों को जून में जदीद मशीनरी की डिलीवरी यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में बताया गया कि सुबह पंजाब में 5000 ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किए जाएंगे, जबकि अगले 2 बरसों में काश्तकारों को 3000 लेजर लैंड लेवलर्स भी सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलर सिस्टम पर मुंतकली के लिए किसानों को 60% सब्सिडी फराहम की जाएगी। खबर यह है, साबिक एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक की जानिब से इंतजामी ओहदों पर रिश्वत लेकर तैनातियों का मामला। लाहौर न्यूज़ की खबर पर महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड का एक्शन। सर्विसेज अस्पताल के AMS परचेज डॉक्टर अवैस को मुअत्तल कर दिया गया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। साबिक MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक की जानिब से इंतजामी ओहदों पर रिश्वत लेकर तैनातियों का मामला। लाहौर न्यूज़ की खबर पर महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड का एक्शन। AMS परचेज सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर अवैस मुअत्तल। डॉक्टर अवैस को महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल में अहम सीटों पर लगाए गए दीगर अफराद के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सर्विसेज अस्पताल के साबिक MS ने परचेज डिपार्टमेंट में पेपरा रूल्स की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की। टेंडर के बजाय कोटेशन और LP पर महंगे दामों सामान खरीदा गया। मनपसंद कंपनियों को महंगे कोटेशन ऑर्डर्स जारी किए और किक बैक्स लिए गए। सूबाई वजीर सेहत स्पेशलिस्ट ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि सर्विसेज अस्पताल में करप्शन और टेंडर्स में मनपसंद कंपनियों को नवाजने वाले तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महंगे दामों सर्जिकल ग्लव्स खरीदने पर भी जल्द कार्रवाई होगी।